Good morning, students. So, today we will see the last topic of our chapter, that is uniform circular motion. Now, see, as the name suggests, you have to consider the motion along the circle. See here, uniform circular motion. So, what is the meaning of this? Circular motion means the motion is performed along the circular track, and uniform means constant, the motion in which the speed is constant. When the object is moving in a circular track and if its speed remains constant, then that type of motion we can consider it as a uniform circular motion. Now see here, the merry-go-round. Already you have played on this merry-go-round. So when this merry-go-round plays in a circular path, then we can say this merry-go-round is moving, is performing a circular motion. And if the particular child is standing on it, then that particular child is also moving in a circular track around the merry-go-round. So we can say that child is also performing a circular motion. See this next example, CD. When you put here CD and the CD is rotating in a circular track, so it is also performing a uniform circular motion. Now see, if we consider the velocity in this uniform circular motion, there are 2 points at which the velocity is changed. First, we can say if the speed is changed, that means the particular vehicle is moving fast, slow. It depends upon the distance covered per unit time, and also it depends upon the direction. Now see how the concept of direction come here. See this figure. This is your square, and at how many points the direction is getting changed? See the corner, the direction. First of all, the object is at A, then it reaches to the B. So this direction, again when it reaches to the B, again the direction is changing. It is coming in downward direction, again in going in a horizontal direction, and again it is moving in a upward direction. So at how many points the direction are changed? 1, 2, 3 and 4. So at 4 corners, when we move along a square track, the direction is changed. Now see this example, hexagonal. At how many corners the direction is changed? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is your octagon. So at 8 corners the direction will get changed. Similarly, if we consider the circle is having a इनफाइनाइट डायरेक्शन. इसके जो पॉइंट्स रहते हैं, हर पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज. सो सर्कुलर ट्रैक कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स. बहुत सारे साइड्स, हर एक पॉइंट को हम साइड बोल सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होता है वो एक क्या होता है? सर्कल होता है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है. और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब क्या चेंज हो रहा है? उसका स्पीड चेंज हो रहा है. समझ में आ गया? लेकिन स्पीड इस तरह से चेंज होता है कि अगर वो कांस्टेंट रहा हर पॉइंट के ऊपर, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये अभी एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. नाउ सी दिस एग्जांपल. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे आप हमेशा खेलते हो, एक रस्सी लेते हो, उसमें एक स्टोन बांधते हो और उसको हाथ से ऐसा गोल 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 घुमाते हो, है ना. तो जब वो जो स्टोन जब ऊपर रहता है, तो वो स्टोन जब ऊपर रहता है तो वो जो स्टोन की डायरेक्शन, फॉरवर्ड जाने की डायरेक्शन होती है, वो ईस्ट की तरफ होती है. और फिर वो रस्सी से बंधा हुआ स्टोन जब नीचे नीचे आता है यहाँ पे आकर, तो वो स्टोन की जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है. फिर वो यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा. यहाँ से आने के बाद फिर से वो इस डायरेक्शन में, यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाती है, और इस पॉइंट पे आने के बाद उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाती है. तो हर पॉइंट के ऊपर उस स्टोन की डायरेक्शन चेंज होती है with respect to the points, with respect to the places where it comes. So this is an example of uniform circular motion. देखो यहाँ पे दिया है definition. When a body moves along a circular path, then its direction of motion कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. समझ में आ गया? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव होता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती है. सो वी कैन से द सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. जब हर पॉइंट के ऊपर उसका वेलोसिटी या डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे. नाउ सिंस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यू टू continuous change in direction, therefore the motion along a circular path is said to be an
accelerated motion. Now, when a body moves in a circular path with uniform speed, constant speed, its motion is said to be uniform circular motion. तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो सारे सर्कुलर मोशन के थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव हो रहा था, उसकी हर पॉइंट के ऊपर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती. लेकिन अगर वो हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करता है, तो वही एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल हो जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक एंड इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट. उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट के ऊपर अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. समझ में आ गया? सो द मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल. अभी ये सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स भी लगता है, तो वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ जाता है, तो ये अभी आपको नहीं देखना है. लेकिन ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है. आप कार में बैठे हो और सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक पे आपकी कार जा रही है, और कार जब आपकी टर्न लेती है तो आपकी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में मूव होती है? अंदर की तरफ जाती है कि बाहर की तरफ जाती है? तो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो ऑब्जर्व किया है, तो जो फोर्स अपने को सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ खींचता है सर्कुलर ट्रैक में, वो होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. और जो फोर्स आपको सेंटर से दूर लेके जाता है, सर्कुलर ट्रैक पे आप मूव हो रहे हो और वो फोर्स अगर आपको सेंटर से दूर लेके जा रहा है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है. हमारी अर्थ का जो भी मोशन है, अभी हम सब अर्थ पे रहते हैं, तो हम सब किसकी तरफ खींचते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हमको सेंटर की तरफ खींचता है, तो वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है. समझ में आ गया? तो ये जितना भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है वो कौन सा फोर्स एग्जिबिट करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो सेंटर से दूर जाता है बाहर, तो उसके बारे में अभी नहीं देखना है. अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो फोर्स होता है that is needed to make an object travel in a circular path, it is a centripetal force. Example देख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, the satellites which are launched by the humans for the study in different fields of science, they are known as artificial satellites and they are moving in a uniform circular motion around the earth. एक पर्टिकुलर ट्रैक बनी हुई रहती है और जो भी मोशन होता है सैटेलाइट का उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है. देन द मोशन, द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. हमारे अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो होता है मून. तो मून भी हमारे अर्थ के अराउंड में घूमता है, तो वो भी कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सी हियर, दिस इज योर सन, this is your earth and this is the moon. The moon is moving in a circular motion around the earth, so it is an example, and the speed is also constant. 1-2 सेकंड का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो जिसके वजह से वो 360 डेज ड्यूरेशन आता है, बट नियर अबाउट इट रिमेन्स कांस्टेंट. सन के अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो जो भी कैलकुलेशन है, माइन्यूट कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट अल्टीमेटली दे आर मेंटेनिंग द स्पीड कांस्टेंट. तो ये जो मून होता है, जो अर्थ के अराउंड में मूव होता है, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ पर्टिकुलर ट्रैक, सो इट इज़, ये तो पीरियोडिक मोशन पहले ही बता दिया था मैंने आपको, क्योंकि टाइम बिल्कुल एग्जैक्टली मेंटेन करते हैं और अभी इनकी स्पीड भी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म स्पीड, एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये एथलीट है, सर्कुलर ट्रैक पे अगर वो मूव हो रहा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये भी एक एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का. ये आपका टॉय कार का खिलौना जो होता है, आप जो रेलवे ट्रैक बनाते हो, प्लास्टिक की जो रहती है ना ट्रैक, पटरी आपको मिलती है दुकान में, और ये इंजन ऐसे गोल गोल यहाँ पे घूमता है, चाबी वाला जो होता है मोस्टली, तो वो भी एक अपनी कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है इसके ऊपर विदाउट डिस्टर्बिंग. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स है. Motion of earth around the sun, it is an example of uniform circular motion. The motion of moon around the earth, it is also an example of uniform circular motion. The motion of athlete or cyclist along a circular track with constant speed, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, तब भी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगा. सिमिलरली आपकी जो घड़ी रहती है, तो घड़ी में अवर्स हैंड रहता है, सेकंड हैंड रहता है, मिनट हैंड रहता है, तो वो भी बिल्कुल कौन सा मोशन एग्जिबिट करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड कैसी रहती है उनकी? कांस्टेंट रहती है. आफ्टर दैट
वी विल सी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स देखते हैं फिर बाद में।